Good morning, students. Welcome to class of investment analysis. Earlier, we have been discussing about the topics of Unit 3 of investment analysis, and we have studied the constant growth model, and we have discussed the security valuation, and we have started the security valuation in India. Okay, so today we will be discussing on the topic of bond valuation, how bond valuation is done and how it is carried out, and what are the factors which are important while doing the bond valuation. What makes us sure that we need to invest in these bonds or debentures or securities. Okay, so my name is Dr. Ritu Singh, and we will be discussing the topic of bond valuation in this lecture. And before going to start bond valuation, I'll suggest that it will be better that we revise our older or our previous 3 lectures of this unit. Okay, so let's start with the topic. So the subject is investment analysis, and we are studying or we are discussing the security pricing. What are the factors affecting it? We have discussed few in last lectures, so we'll move forward with this. Okay, so the first topic which we discussed was security valuation. And what was the meaning of security valuation? Security valuation was based on 4 basic points, which was book value, liquidating value, intrinsic value, and replacement value. Okay. Then we discussed the definitions, the basics of these 4 values. Book value was the accounting concept. This was the historical price of the security at which it was first traded. Then liquidating value was the value of our security at which it is traded in the market. मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होती है, जो हमें सारे लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद हमें अपने मार्केट में मिलेंगी, दैट वुड बी लिक्विडेटिंग वैल्यू. देन केम द इंट्रिंसिक वैल्यू. Intrinsic value was basically the value which we receive in market for our securities. Intrinsic value आपकी ओवर प्राइस भी हो सकती है सिक्योरिटी की और अंडर प्राइस भी हो सकती है. And then comes the replacement value. Replacement value decides if we are replacing one share with another, or we are giving our shares, we are closing our shares, number of shares, then what value they will derive us, it is called replacement value. Then comes the market price. Market price is the price at which the securities are traded in the market depending upon the supply and demand. अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, if some company has a better credit standing in the market, so at that time the market price of shares will be higher in the market. And if it is not doing good, if the profits are going down, then the price will be down in the market. And the key takeaways of the market price was that it is the current price at which goods or services can be purchased. The financial markets, the market price can change quickly as people change their bid or offer prices, or sellers may differ with the bid and offer prices. So these bid and offer prices represent the asset at which it can be bought and sold. Okay. So next we discussed that what are the factors which influences the security valuation. सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो है, सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला पॉइंट है आपका रेगुलर डिविडेंड्स और इंटरेस्ट. रेगुलर आपको कोई भी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आपको जो डिविडेंड इंटरेस्ट दे रहे हैं, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में इंक्रीज़ करती है. देन कम्स योर कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस. आपको उस असेट वैल्यू पे कितने गेन या लॉसेस हो रहे हैं, इस पर भी डिपेंडेंट होता है. Then here the basic formula of time value of money is applied. We can see the formula here, that P is equals to Vn upon 1 plus G power n, where P is the initial value, V is the terminal value, G is the rate of compounding or the growth rate,
एंड n इज़ द नंबर ऑफ पीरियड। तो इस फॉर्मूले में हम ये डिस्कस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी हमें कोई फाइनल वैल्यू दे रही है और जिस पे हमने एक सर्टेन ग्रोथ रेट या कंपाउंडिंग रेट लगाया है नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, तो उसकी जो टर्मिनल वैल्यू है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, वो कितनी आएगी, हाउ मच इट विल इफेक्ट आर बुक्स ऑफ अकाउंट। Then what were the factors which were influencing share prices? The first was demand and supply. Demand and supply पे बहुत डिपेंड करता है। बैंक रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, क्या वो इन्वेस्टर्स की रिक्वायर्ड नीड्स के अकॉर्डिंग है। देन मार्केट प्लेयर्स कौन कौन से हैं उस फील्ड में। डिविडेंड के अनाउंसमेंट्स का जो रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड है वो क्या है, डिविडेंड्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देन व्हाट इज़ द मैनेजमेंट प्रोफाइल, कौन सी सक्सेसफुल कंपनीज कौन से शेयर्स को मार्केट में लेके आ रही हैं। देन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब कि आपकी जिस भी कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो अपनी ट्रेड साइकिल के कौन से पॉइंट पे है। आर दे इन अ ग्रोथ फेज, आर दे इन डिक्लाइन फेज, आर दे इन द मैच्योरिटी फेज। उसके अकॉर्डिंगली उनके डिविडेंड्स और प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट वाज स्पेकुलेशन। मार्केट का क्या स्पेकुलेशन चल रहा है, मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही हैं, इस पे भी डिपेंड करता है सिक्योरिटी का प्राइस। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आपके शेयर प्राइसेस को गवर्न करते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बार बार चेंज हो रहे हैं तो भी आपके सिक्योरिटी प्राइसेस डिफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप कैसे है, कंपनीज़ की वर्किंग कैसे चल रही है, स्ट्राइक्स वगैरह नहीं हो रही हैं तो आपके सिक्योरिटी प्राइसेस बेटर रह सकते हैं। Then again this point came of stability of government, that how the government is working, what new rules and regulations it is giving for the business sector, it will affect your security prices. The next was general market sentiment, action of institutional investors, what was the level of FDI in the country, and what are the returns offered by the market, and availability of credit, and effective regulation done by the various departments of Indian security regulation. तो हम इंडिया में जो मैक्सिमम सिक्योरिटी रेगुलेशन होता है दैट इज़ डन थ्रू CB एंड समटाइम्स CCI ऑल्सो। दैट इज़ CCI इज़ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो ये इंश्योर करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि जो आपकी सिक्योरिटी की नेट एसेट वैल्यू है और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू है वो किसी भी बेसिस पे रिग ना हो और अब इन्वेस्टर्स को उनके फेयर रिटर्न्स मिलते रहें। ओके, then in the next chapter, in next lecture we discussed about Graham's approach of equity of valuation, कि वो इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे करते थे। उन्होंने ग्रोथ मॉडल लगाया था। तो उनके ग्रोथ मॉडल से एक हमने मॉडल क्रिएट किया था। गॉर्डन क्रिएटेड दिस मॉडल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, विच is used to determine the intrinsic value of stock based on future series of dividend. Okay, गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है आपका P is equals to D1 upon R minus G, that is where the P determines the current stock price, क्या stock price है आपका मार्केट में, then constant growth rate क्या है, in what matters you are going to receive the dividend, then रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना चाहिए एंड नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की वैल्यू कितनी रहेगी। तो अगर ग्रोथ रेट अच्छा है आपकी सिक्योरिटी का तो आपके करंट प्राइस बढ़ना चाहिए। इस मॉडल के साथ लिमिटेशन ये थी कि अगर आपका ग्रोथ रेट आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपका जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी, जहाँ पे आप एक्चुअल करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल विच वी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर and this was all about the syllabus. Now in today's lecture we are going to discuss about bond valuation. So how this bond valuation is done and how this is fixed. Okay, and what is bond valuation, why we need to do bond valuation? So bond valuation is a technique for determining the theoretical fair value of particular bond, and this includes
calculating the present value of bond or future interest payment, which is also known as cash flow, and the bond value upon maturity, which is also known as its face value or par value. Because a bond par value and interest payments are fixed, an investor uses bonds to determine what rate of return is required for bond investment to be worthwhile. So bond valuation is a very important topic. Okay, here we need to understand here that कोई भी सिक्योरिटी जब मार्केट में आती है, whenever a security comes into the market, we want to make sure that it is making return for the investor. So whenever a bond or a debenture or a security is issued in the market, when it comes into the market, it bears some face value. एक इसकी face value होती है मार्केट पे जिस पे ये ट्रेड होने वाला होता है. ये फेस वैल्यू वो होती है कि जब आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो आपको मैच्योरिटी पे उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, या फिर उस वैल्यू पे या उस पार वैल्यू से अगर ज़्यादा मिलेगी तो हम कह देंगे कि बॉन्ड इज़ एट प्रीमियम. उससे कम पे मिलेगी तो वो वी विल से दैट बॉन्ड इज़ एट डिस्काउंट. ओके, एंड ऑल्सो इफ़ एज एन इन्वेस्टर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बॉन्ड इन अ मार्केट, आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा. Okay, that interest rate is the future cash flow which you are going to receive on that bond. तो बॉन्ड वैल्यूएशन इस बेसिस पे होता है कि पहले तो आप उसकी फेस वैल्यू क्या पे कर रहे हैं, और फेस वैल्यू पे करने के बाद आपको मैच्योरिटी पे क्या वैल्यू मिल रही है, एंड उस बॉन्ड पे जो कंपनी वो बॉन्ड रिलीज़ कर रही है वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है. इन दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी और वो किस वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड करेंगे. एंड बॉन्ड वैल्यू, बॉन्ड पार वैल्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर फिक्स्ड. So investor uses bond valuation to determine what rate of return is required for bond investment to be worthwhile. तो इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकता है इंटरेस्ट पेमेंट और मैच्योरिटी वैल्यू के बेसिस पे कि बॉन्ड वैल्यूएशन पे उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस बॉन्ड वैल्यूएशन? बॉन्ड वैल्यूएशन इज अ वे टू डिटरमाइन द थियोरेटिकल फेयर वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड. हम बॉन्ड वैल्यूएशन कैलकुलेशंस के थ्रू, और आपने बॉन्ड वैल्यूएशन के कैलकुलेशंस अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजंस के सब्जेक्ट में ऑलरेडी किए होंगे. So hopefully आपको याद होगा and you can do the revision. So in there we used to calculate the fair value of our particular bond. उसकी fair value क्या है, fair value कैसे calculate होती है कि उसके साथ credit, उसकी credibility क्या है उस bond की, उस company की, and in which market or industry it is going to be traded. अगर आपका established company का या किसी नवरत्न company का और या जिस ऐसी कंपनी जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी हैं, इनके बॉन्ड मार्केट में आ रहे हैं तो इनकी पार वैल्यू ज़्यादा होती है. बट अगर आपके बॉन्ड्स ई कॉमर्स मार्केट से आ रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री सेगमेंट से आ रहे हैं, तो क्योंकि वो एक ग्रोथ फेज इंडस्ट्री है अभी और किसी नई कंपनी के आ रहे हैं, तो हो सकती है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू या फेयर वैल्यू या पार वैल्यू कम हो. ओके, so what does it involve? It involves the calculation of present value of bonds, expected future coupon payments, cash flow, and bond value upon maturity. As bond per value and interest payments are set, bond valuation help investors figure out what rate of return they will make on their bond. Okay, so present value के questions हम लोग इससे पहले कई बार लगा चुके हैं. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के questions हम कई बार लगा चुके हैं. So we know how to calculate present value of our expected future payments. उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं बॉन्ड पे, हमें उससे उस पर कितना रिटर्न मिलेगा. इफ़ दैट रेट ऑफ रिटर्न इज़ इक्विवेलेंट और इज़ इक्वल और इज़ सफिशिएंट विद अस, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है, तब तो हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वी वोंट इन्वेस्ट. ओके, so how do we understand the bond valuation? So here we can see how to understand the bond valuation here.
So bond is a debt instrument. Bond is a debt instrument that provides a steady stream of income to the investor in form of coupon payments. And at the maturity date, the full face value of the bond is repaid or redeemed to the bondholder. तो होता क्या है कि आप बॉन्ड परचेज करते हैं, बॉन्ड पे कुछ मैच्योरिटी डेट होती है, बेसिकली मोस्टली इट इज़ 5 years और 10 years. सो एक्सक्यूज मी. सो एक जो इन्वेस्टर होता है वो बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करता है. उस बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 साल, 10 साल या 7 साल हो सकती है. बॉन्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड खरीदते समय जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें डिसाइडेड होता है कि आपको मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगी अपने बॉन्ड की. और वो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले जो कंपनी है आपको पर फाइनेंशियल ईयर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट देगी. ओके, सो दैट इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको उस बॉन्ड पे मिलती है वो आपकी पर ईयर की एक स्टडी इनकम हो जाती है. सो एवरी बॉन्ड इंक्लूड्स 2 points. 2 रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स उस बॉन्ड में, हर बॉन्ड में होते हैं. पहला होता है आपका कूपन रेट, दूसरा होता है मैच्योरिटी डेट. कूपन रेट जो होता है बॉन्ड के, दे आर द इंटरेस्ट रेट. कूपन रेट का ही मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जो कि बॉन्ड होल्डर्स को एनुअली या सेमी एनुअली बेसिस पे पे किया जाता है. ओके, और कूपन रेट जो है आपका, जो आपका इंटरेस्ट रेट है किसी भी बॉन्ड पे, वो फिक्स्ड होता है. वो फिक्स रेट पे आपको एनुअली और सेमी एनुअली पेमेंट्स मिलती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं, और वो आपकी अर्निंग्स होती हैं. ये इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको तब तक मिलती रहती हैं जब तक आपका बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता और आपको उसकी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिल जाती. देन कम्स द मैच्योरिटी डेट. हर बॉन्ड की यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट की एक मैच्योरिटी डेट होती है. आपके बॉन्ड शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं. वो जब भी मैच्योर होगी तो जो आपका बॉन्ड इशूअर है, जो बॉन्ड इशूइंग कंपनी है, वो इन्वेस्टर को फुल फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड देते हैं. ओके, एंड इफ़ इस फेस वैल्यू से अबव आपका बॉन्ड ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड इज़ एट प्रीमियम. अगर इस फेस वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में, देन बॉन्ड इज़ एट डिस्काउंट. ओके, दीज आर द 2 conditions. These are the 2 important conditions. Then next comes the current price. excuse me. So next point which we need to consider here is the current price here. So what is the current price? Current price का जो वर्ड है उससे ही हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो आपके करंट प्राइसेस चल रहे हैं. करंट प्राइस, इफ़ वी डिवाइड इनटू 2 points, इट इज़ लाइक करंट प्लस प्राइस. तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आपके बॉन्ड का, वो उसका करंट प्राइस है. मार्केट में जिस वैल्यू पे वो ट्रेड हो रहे हैं वो उसका करंट प्राइस है, और वो आपकी बॉन्ड की वर्थ को डिसाइड करता है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द एनवायरनमेंट, द इन्वेस्टर मे परचेज अ बॉन्ड एट पार, बिलो पार और अबव पार. ओके, यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स यूज़ किए, 3 टर्म्स यूज़ किए, एट पार, बिलो पार और अबव पार. ओके, सो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है जिसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं. इफ़ योर बॉन्ड इज़ परचेज एट पार वैल्यू, ओके, मैच्योरिटी में वो एट पार वैल्यू पे परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, तो यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है उतना ही आपको प्राइस मैच्योरिटी पे मिलेगा, मार्केट पे मिलेगा. बिलो पार का मतलब है कि जो भी उसकी फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस में वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो हम बिलो पार कंडीशन को एट डिस्काउंट कंडीशन भी कहते हैं. सो यू कैन राइट इट इन योर नोट्स ऑल्सो दैट बिलो पार कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एट डिस्काउंट कंडीशन. ओके, दैट मीन्स बिलो पार मीन्स कि जो भी फेस वैल्यू है आपके सिक्योरिटी की, आपके बॉन्ड की, उससे कम वैल्यू पे वो ट्रेड हो रहा है. अगर आपके बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है तो मार्केट में वो प्रॉबेबली 950, 940 और मे बी 970 के रेट पे ट्रेड हो रहा है. देन कम्स द अबव पार. अबव पार मीन्स दैट योर बॉन्ड इज सेलिंग एट हायर प्राइस देन एट द मैच्योरिटी प्राइस और द पार वैल्यू और द फेस वैल्यू.
तो अगर किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू पार वैल्यू 1000 रुपीज़ है और वो मार्केट में 1040, 1050, 1100 के रेट पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो उसे हम अबव पार कंडीशन रहेंगे. एंड अबव पार कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एट प्रीमियम. sorry again. So above par condition is also called at premium. Okay, so sorry again, I just got a sneeze attack here. So next point is the bond valuation in practice. How does this bond valuation works in actual practice? Since bonds are essential parts of the capital market, investors and analysts seek to understand how different features of bond interact in order to determine its intrinsic value. Like a stock, the value of bond determines whether it is a suitable investment for a portfolio, and hence the integral step of bond investing is taken. So whenever a bond is invested, whenever we invest a bond, so it becomes imperative for us कि we determine if this bond is going to be useful for us or not. Okay, so we make some calculations, we do some history research to ensure that whatever valuation, whatever investment we are going to do is useful for us. And if all those criteria are matched by the bond, if जो भी return हमें चाहिए अपने bond से वो सारे criteria match कर रहे हैं, तो जो then that bond becomes the integral part of our portfolio. हम किसी बॉन्ड को अपने पोर्टफोलियो में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो बॉन्ड हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करता है. So bond valuation in effect is calculating the present value of bonds' future expected payments, and if the theoretical fair value of bond is calculated by discounting the present value of its coupon payments and at an appropriate discount rate. Okay, तो bond value को calculate करने का सही तरीका यहाँ पे क्या है? Bond valuation क्यों ज़रूरी है? Why we do the bond valuation? Because we are investing our hard-earned money. Okay, हमने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, सेव किया है, now we are investing it in the market. सो वी कैलकुलेट कि किसी बॉन्ड पे हमको फ्यूचर पेमेंट्स क्या मिलने वाली है, और वो जो फ्यूचर कूपन पेमेंट्स हमें मिलेंगी या जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें मिलेंगी उनकी उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम रिसीव कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. और उस प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम एक थ्योरेटिकल डिस्काउंट रेट अप्लाई करते हैं. ये डिस्काउंट रेट हमारा कहाँ से आता है? दिस डिस्काउंट रेट इज़ डिटरमाइंड और समटाइम्स वी अज्यूम दिस डिस्काउंट रेट. हम ये मान के चलते हैं कि इस रेट पे हमारा इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में, एंड वी विल बी स्पेंडिंग मनी एंड देयर माइट बी सम रिस्क इन द मार्केट. तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिस्काउंट रेट अज्यूम करते हैं. उस डिस्काउंट रेट पे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अपने फ्यूचर पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. और अगर वो फ्यूचर पेमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको मैच करती है तो हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो डिस्काउंट रेट इज़ यूज्ड इज़ द यील्ड टू मैच्योरिटी, विच इज़ द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर विल गेट if he or she invest every coupon payment from the bond at fixed interest rate until the bond matures. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी बॉन्ड पे जो भी हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो उसकी पार वैल्यू मिल रही है, जितना समय लगा रहा है वो मैच्योरिटी पे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशंस को कवर अप कर रहा है, तो देन इट इज़ ओके टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं. एंड अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो इन 2018 US bond market was of total of $42.8 trillion. Okay, so at
एंड ऑफ 2018, यानी कि एट द एंड ऑफ दिसंबर 2018 द साइज ऑफ यूएस बॉन्ड मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू $42.8 trillion. Okay. Then the next point is the zero coupon bonds. Okay, so when we are talking about zero coupon bonds, so in those, as we have studied before, that every bond has a coupon rate, every bond has an interest rate. Okay, तो हम बॉन्ड का कुछ प्राइस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे करते हैं, और उस बॉन्ड को अपने पास कुछ समय तक मैच्योरिटी पीरियड तक रखने के लिए हमें एक मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है और इंटरेस्ट रेट मिलता है. वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है कि उस बॉन्ड पे कंपनी कूपन रेट कितना प्रोवाइड करा रही है. कूपन रेट आपका इंटरेस्ट रेट के बराबर ही होता है, मतलब कूपन रेट इज़ इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट रेट. बट समटाइम्स कंपनीज गिव यू बॉन्ड्स विद ज़ीरो कूपन रेट, यानी कि उस ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे आपको किसी तरह का कोई पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एनुअल या सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता है. सो ये जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं ये आपके डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी होते हैं, बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको मिल रही होती है वो काफ़ी हाई होती है. दैट मीन्स वट एवर यू आर पेइंग करेंटली फॉर the bond, you may not get any interest rate on it, but in future when the bond will mature, the maturity value will be quite high or even double of your purchase price. Let's take a look at this, its definition, that zero coupon bonds makes no annual or semi annual coupon payments for the duration of the bond. It is sold at a deep discount to the par when issued. Okay, I'll again read this statement, that zero coupon bonds makes no annual or semi-annual coupon payments for the duration of the bond. कोई पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हैं. Instead, it is sold at a deep discount to par when they are issued first time in the market. So the difference between the purchase price and par value is the investor's interest earned on the bond. So to calculate the value of a zero coupon bond, we only need to find the present value of the face value. ओके, तो होता क्या है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड में आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, आपको कोई भी एनुअल या सेमी एनुअल पेमेंट नहीं किया जाता है. बट यहाँ पे होता क्या है कि यू गेट दीज बॉन्ड्स एट अ वेरी डीप डिस्काउंट्स. दैट मीन्स अगर आपके बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, इफ़ योर बॉन्ड वैल्यू इज़ 1000 रुपीज़, तो मार्केट में जब ये आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू होगा, रिलीज़ होगा, तो इन्वेस्टर को ये बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट के साथ मिलेगा. मतलब दैट मीन्स कि ही विल रिसीव इट एट द रेट ऑफ 300 रुपीज़ एंड 400 रुपीज़ ओनली. ओके, जब आपके बॉन्ड की फेस वैल्यू जिसकी 1000 रुपीज़ है और आपको जो करंट परचेज प्राइस है दैट इज़ ओनली 300 to 400 रुपीज़, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ डीप डिस्काउंट इन द पार वैल्यू, a huge amount of discount at the par value or the face value. जब आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो आपको वो पूरी पार वैल्यू उस बॉन्ड पे मिलेगी. सो इफ़ यू आर पेइंग 300 रुपीज़ फॉर अ बॉन्ड एंड एट मैच्योरिटी यू आर रिसीविंग 1000 रुपीज़. लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने 300 रुपये का ज़ीरो कूपन बॉन्ड खरीदा और मैच्योरिटी पे आपको 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है आपका 700 रुपीज़ का. Okay, this will cover up your interest payments. That means you have paid 300 rupees and you are receiving 1000 rupees. That means you are making a profit of more than 200%. This 200% rise in the value of your bond, that means you purchase it at 300 and at maturity you receive 1000 rupees. This difference of 700 rupees, or we can say this rise of more than 200%, it will cover your interest payment also. आप कोई बॉन्ड 900 रुपीज़ का परचेज़ करते हैं, मैच्योरिटी पे आपको 1000 रुपीज़ मिलते, हर साल आपको उस पर 60% के इंटरेस्ट रेट पे 70 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिलता, वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो आपके रिक्वायर्ड रेट पे है, एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू ज़ीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पे आप 300 रुपये का बॉन्ड खरीद रहे हैं और मैच्योरिटी पे आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट हो रही है. तो ये जो 700 रुपये का डिफरेंस है ये आपके इंटरेस्ट रेशियो को भी पूरा कवर कर लेगा, जो कि आपको कूपन बॉन्ड वाले बॉन्ड के साथ मिल रहा था. ओके, सो
ज़ीरो कूपन बॉन्ड पे मैंने यहाँ पे एम्फेसाइज इसलिए किया है क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टर को शुरू में कम इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड अपने इन्वेस्टमेंट को करके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटलीस्ट 5, 7 या 10 साल के लिए उसको साइड कर देना होता है। बट मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद उसको एक सफिशिएंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है और इन्वेस्टमेंट करते समय भी उसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। अगर वो कूपन वैल्यू बॉन्ड्स के पे इन्वेस्ट करता तो उसको 1000 रुपये की फेस वैल्यू पे एटलीस्ट 950, 970 रुपीज़ पे करने पड़ते, विच इज़ हायर अमाउंट देन 300 रुपीज़। सो इन्वेस्टिंग, सो दिस बिकम्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टूल हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड आपका स्मॉल आंसर क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। ओके, so this was all about the bond valuation in India, or we can say bond valuation market. bond valuation market में जो मेन चीज़ें, जो important points, मेन points हमें याद रखने हैं, that कूपन रेट आपको कितना मिल रहा है अपने बॉन्ड पे, मेच्योरिटी डेट क्या है आपके बॉन्ड की, और उसका करंट प्राइस क्या है, क्या वो एट पार है, बिलो पार है या अबव पार है, यानी कि इफ़ इट इज़ एट द फेस वैल्यू, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। बॉन्ड वैल्यूएशन प्रैक्टिस में हम जो हमें अपने बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जो हमको मेच्योरिटी रेट मिलने वाली है, ये डिसाइड करता है कि हमें अपने इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या फिर इज़ इट सूटेबल टू मेक इट पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। एंड द लास्ट पॉइंट विच वी डिस्कस वॉज ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आपके वो बॉन्ड्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, बट ये आपको डीप डिस्काउंट पे सेल किए जाते हैं, यानी कि आपको काफ़ी कम प्राइस पे करना पड़ता है और मेच्योरिटी के बाद आपको एक अच्छी फेस वैल्यू, एट पार वैल्यू पे की जाती है। So this was all for the today's lecture. See you again in the next lecture, and if you have any questions you can put up on your Google Classroom or the other online platforms where we can connect. So thank you so much students, and see you soon again for your next lecture of investment analysis. So this is me, Dr. Ritu Singh, signing off from this class, and I'll suggest you and I'll encourage you to watch the next video on this unit. Okay. Thank you students.